Our third speaker brings a vital voice from the front lines of healthcare and public advocacy, Dr. Aftab Ahmed Khan. He's a seasoned public health expert, family physician, and policy advisor who currently serves as the president of Pakistan Health Parliament, Karachi chapter. He is also a consultant at Meet Hi Zindagi Pakistan, where he champions patient-centered care and institutional reform. His career spans leading organizations such as Aga Khan University Hospital, UNICEF, WHO, CDC Atlanta, and more. Blending global experience with grassroots commitment. In addition to his policy work, Dr. Aftab has also appeared regularly on national media platforms where he demystifies healthcare challenges for the public and advocates for accountability, ethics, and trust in the medical practice. We are deeply honored to have him lend his voice to this discussion today. Thank you once again to all our speakers for being here with us. To commence today's session, it's an honor to invite Dr. Aftab Ahmed Khan, who will be delivering a focused presentation on the institutional gaps that enable malpractice and how they ultimately threaten national security. My team will be sharing his slides on the screen as he presents. Dr. Aftab, over to you. First of all, thank you very much for inviting me for such an important topic today. And it's a need of the day that we have to talk about the quackery and the malpractices. Although it's related to my profession, medical, but there are certain other fields, is medical allied fields also. So it's a good topic today we can talk about, and we, as you just introduce other speakers, learned speakers. So it would be a good show today to learn with each other, and for the audience who are just also with us to learn how we can just combat with this malpractices and the quackery in our country. So first of all, I just would like to have a few slides on that. I just try to chalk down this some questions arising in the mind of different people over there. So I just try to address all these things. So this is brief introduce. Thank you very much. And next slide, please. Okay, I'm just starting this thing, and in between you can go for the slide mode so everybody can see clearly over here. So there, as a public health scientist, because I'm a public health consultant and a scientist also, there is a question arise that in a country, what risks when the public health policies are not strong or properly followed? Because the public health policies are the backbone of every country or every health system in different countries. So if this is not up to the date, how we can just combat, or what risks we can just observe in this case? So without the strong and the well enforced public health policies, a country faces the numerous risks, which includes the proliferation of the infectious diseases. Like in Pakistan, we can just recently have a COVID, we have a polio. We are not controlling the polio right now, and we have tuberculosis in Pakistan. We have some other infectious diseases which are nowadays very prevailing in our country, and we are trying to combat all these with different immunization or vaccination, but not succeed because the public health policies are not up to the mark. That's why we are just seeing these type of problems over here in Pakistan. For the audience who just can speak Urdu and English, I just go, my presentation would be in the bilingual so everybody can understand easily. होता क्या है कि जब पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ क्या होती है? पब्लिक हेल्थ बेसिकली जितनी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उनको हेल्थ पॉलिसीज को जो है वो सपोर्ट करती है कि हाउ वी कैन कम्बेट ऑन दैट, एंड हम चाहते हैं कि जी बीमारी होने से पहले ही जो है वो मरीज की बीमारी को खत्म कर दिया जाए, और पब्लिक हेल्थ का यही इश्यू होता है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, कि हम अगर पहले से जो है प्रिवेंशन कर लें तो हम बच सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं इस पब्लिक हेल्थ के हवाले से कि ऐसी पॉलिसीज बने ये इन्फेक्शियस डिजीज है बाय वैक्सीनेशन और बाय इम्यूनाइजेशन उसको हम रोक सकें। जैसे हमने रिसेंटली देखा कोविड एक पूरी दुनिया का जो बड़ा इशू था, तो वैक्सीनेशन हुई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने बर्दाश्त किए,
इसी तरह पोलियो ड्रॉप्स हर साल पाकिस्तान में देखें, पोलियो 2 कंट्रीज है दुनिया में, पोलियो तो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो भी इन्फेक्शन डिजीज है। और इसी तरह से टाइफाइड है और बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से लगती हैं। तो हमें चाहिए कि उनकी हम बेटर पॉलिसी बनाएं और इससे हम बच सकें। और इसी तरह से जितनी जो मैल प्रैक्टिस जब होती हैं, जब ज्यादा बीमारियां होती हैं तो इतने ही ज्यादा जो लोग हैं वो मार्केट में आ जाते हैं और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस चीज से बचा जाए। इसी तरह से एडिशनली अगर हमें बात करें, इकोनॉमी कैन सफर ड्यू टू द इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, reduces the workforce productivity and potential loss of the international reputation. इसमें भी यही होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई, जैसे देखा जाए हमारे यहाँ पर क्योंकि हेल्थ सिस्टम इतना एस्टेब्लिश नहीं है, तो जो बर्डन है वो जो हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा है। अगर आप जाएं किसी भी अस्पताल में तो लगता है कि जी हम किसी जलसा गाह में आ गए हैं या कोई इस तरह का, यहाँ पे तो मॉब है या कोई शादी हॉल है, क्या है, जहाँ इतने सारे मरीज एक साथ जमा होते हैं और उसमें दोनों नुकसान रहते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर भी इकोनॉमिकल बर्डन आता है और जो मरीज बीमार पड़ता है उसकी जेब पे भी बोझ पड़ता है कि वो अपने दवाएं ले या टेस्ट कराए। तो इस लिहाज से जो है ये बड़ा एक मिथ है कि इसको हम सही कर सकें किसी तरह से। और फिर इंटरनेशनली भी जो है वो हमारी रेपुटेशन खराब होती है। लेट्स से अगर हम जैसे अभी पोलियो हमारा यहाँ पे एरेडिकेट नहीं हुआ, जब हम मुख्तलिफ कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं तो वो कहते हैं आप वैक्सीनेट होकर आइए। इसी तरह से मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनको हमें वैक्सीनेट करके तो पहले चेक करते हैं, तो उसके बाद हमें एंट्री देते हैं। तो ये इंटरनेशनली भी एक रेपुटेशन जो है कंट्री की खराब होती है कि अगर इस तरह की डिजीज यहाँ पे प्रिवेल कर रही है तो। Furthermore, the inadequate policies can erode public trust in health authorities, making it challenges to implement future health interventions effectively. अगर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से जो है पब्लिक पॉलिसी नहीं बना पाती तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी खत्म हो जाता है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो थोड़ा सा भी अफोर्डेबल है वो कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना पसंद नहीं करते, वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहां पे जाके जो है वो ज्यादा खर्चा उनको करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है हेल्थ का वो इतना एस्टेब्लिश अभी नहीं है और लोगों का ट्रस्ट इस पर डेवलप नहीं हो सका है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, आप इसमें हम ये देख सकते हैं कि हाउ वी कैन जस्ट लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज हाउ दे व्हाट दे आर डूइंग ऑन दैट। पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंटिंग द हेल्थ मैल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मैल प्रैक्टिस हर जगह मौजूद है। तो हम ये समझते हैं कि जब हम ट्रैवल करते हैं दुनिया में, हम देखते हैं कि वहाँ की हेल्थ पॉलिसीज किस तरह से हैं और हाउ वी कैन जस्ट कम्बैट ऑन दैट। So Pakistan can learn several valuable lessons from other countries. And firstly, establishing a strong regulatory framework that holds healthcare providers accountable in crucial. हमारे मुल्क में सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे रूल्स रेगुलेशन तो बढ़े हुए हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हमारे यहाँ पर जो रेगुलेटरी सिस्टम है फ्रेमवर्क वो अभी इतना एस्टेब्लिश नहीं है। हमारे यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो हैं मुख्तलिफ सूबों में, जगहों पे, शहरों में, लेकिन वो इतनी फाल नहीं है कि वो जाके उनको पकड़ सकें और जो मैल प्रैक्टिस करते हैं या क्वैकरी करते हैं और उनको किसी सजा का मुस्तहक में करार दिया जा सके। उनको पकड़ तो लेते हैं लेकिन उनकी बेल भी हो जाती है। फिर वो इसके पीछे बहुत सारी जो है अवामिल हैं, मैं यहाँ इस पर उनको नहीं बताना चाहता क्योंकि ड्राइवर सबको पता है कि जब कोई किसी को पकड़ा जाता है तो किस तरह से छूट जाता है, या तो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है या फिर जो है वो और दूसरे जो मीन्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके वो छूट जाते हैं तो दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी सिस्टम फ्रेमवर्क है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो और दूसरे कंट्रीज ने किया है। कंट्रीज विद लो मैल प्रैक्टिस रेट्स often have a stringent licensing and accreditation process that ensures medical practitioners adhere to high standards of care. ये भी इसी तरह से गो कि हमारे मुल्क में जो भी डॉक्टर आता है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसको एक PMDC हमारा एक इदारा है जो उसको लाइसेंस देता है टू प्रैक्टिस, और इसी तरह से फिर उसकी साल टू साल जब भी वो प्रैक्टिस होती है उसको एक्रेडिट करते हैं कि जी ये इस काबिल है कि प्रैक्टिस कर सकें। इस तरह बाहर कंट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, लेकिन हमारी कंट्री में थोड़ा सा ये जो तरीक़ेकार है बहुत ही थोड़ा सा लूज कह लूँ मैं, इसको लो कह लूँ, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये वजह है कि जो मैल प्रैक्टिस होती है वो इसी वजह से होती है कि एक डॉक्टर जो है क्वालिफाइड डॉक्टर की जगह एक क्वैक
या एक कंपाउंडर वो उसी जगह बैठा हुआ होता है और लाइसेंस वो उसका इस्तेमाल कर रहा होता है या नाम उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता कि अगर एक डॉक्टर को आपने लाइसेंस दिया है प्रैक्टिस का, तो जो हमारे हेल्थ के इदारे हैं वो जाके चेक करेंगे क्या डॉक्टर वही बैठा हुआ है या उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट में कोई और कोई क्वैक बैठा हुआ है या जो मैल प्रैक्टिस कर रहा है. Additionally, creating a culture of transparency and continuous education can empower the healthcare workers to prioritize patient safety. सबसे ज्यादा अगर ये सिस्टम हम एक ट्रांसपेरेंट रखें कि कोई भी किसी की सोर्स इस्तेमाल ना हो, या अगर कोई अप्रोच करता है हायर अथॉरिटीज को तो वहीं पे उसको कट डाउन किया जाए और उसको ये बात पता ही जाए कि जी ये क्योंकि एक पेशेंट सेफ्टी का इशू है, एक हेल्थ का इशू है, एक लाइफ का इशू है, तो हम आपको इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दे सकते. तो जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी हम इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. Implementing the system for reporting and addressing malpractice or ethical violation without fear of punishment can promote accountability and improve overall care standards. जब मुझे ये खौफ ही नहीं होगा कि जी मुझे मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो मुझे सजा होगी या मैं अकाउंटेबल होऊंगा या मुझे पनिशमेंट दी जाएगी, तो मैं जो मर्जी करता फिरूं और उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. तो अगर हम किसी भी माशरे में इस तरह की मैल प्रैक्टिस जो करते हैं उनको अकाउंटेबल करें, उनको हम पकड़ें, उनको पनिशमेंट दें और एक जो हम कहते हैं कि जी हम दूसरों के लिए एक इसको प्रेसिडेंट सेट करें और उसको हम निशान इबरत बनाएं, तो बाकी लोग खुद ब खुद ये डर जाएंगे. लेकिन हमारे माशरे में इस तरह का अमल नहीं हो पाता. लोग पकड़े जाते हैं पर फौरन ओवरनाइट छूट भी जाते हैं और फिर उनके जो है दोबारा से वही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं. तो ये जो अमल है इसको थोड़ा सा हमें जो है वो तवज्जो देने की जरूरत है. जो अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, अगर हम दूसरे कंट्रीज में देखें जो एडवांस कंट्रीज है वो भी और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी दोनों. हम डेवलप अंडर डेवलपमेंट में आते हैं, अभी हमें बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन डेवलप कंट्रीज में जो है ये इस तरह की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है. इसी वजह से वहाँ पे ये मैल प्रैक्टिस बदलनी है. अब इन सबका सोल्यूशन क्या है, हम किस तरह से इसको जो है वो खास कर सकते हैं. सोल्यूशन आइडियाज वुड बी इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द मैल प्रैक्टिसेस इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम. एक चीज है, बुराई है या जो भी है उसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है, क्या आइडियाज हो सकते हैं. Creating an inadequate agency focused on the monitoring healthcare quality and ethical practice would be a significant step forward. इसमें अगर हम इस तरह की एजेंसीज को या जो एथिकल प्रैक्टिस के लोग हैं उनको हम इन्वॉल्व करें और हम बताएं कि जी ये एक ह्यूमन लाइफ का इशू होता है, तो अगर आप इसमें मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्वेकरी कर रहे हैं तो उससे बचा जा सके. चाहे वो एथिकल ग्राउंड पे हम उनको इस चीज में अपनी तरफ लेकर आए, उनको समझाएं या हम उनकी जो है वो हेल्थ क्वालिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें. दूसरे इसमें क्या दिस एजेंसी would establish and enforce ethical standards, other continuous education for the healthcare professionals and investigate compliant systematically. होता क्या है कि जब हम इस तरह के सिस्टम में जाते हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एथिकल स्टैंडर्ड को पूरे नहीं कर पाते. ना ही हम अपने जो हेल्थ एजुकेशन में होती है एक दफा डॉक्टर बन गए उसके बाद जो है वो हम जो हमारी एनफोर्स एजेंसीज हैं वो उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाते. जब वो अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने जाते हैं तब वो उनको इनसे एनकाउंटर में आते हैं, वो 5 साल के बाद आ रहे होते हैं. तो इसके बीच में जितने क्वैक्स होते हैं उनका तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होता नहीं और वो डॉक्टर्स के लाइसेंस के ऊपर जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. तो हमें दोनों तरह से इस पर काम करना पड़ेगा. एक तो ये कि हमें इनकी कंटिन्यूस एजुकेशन के हवाले से बात करनी होगी, उनकी एथिक्स के हवाले से भी बात करनी होगी कि ये आप काम कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, गलत है, तो बराए में बारी आप इसके छोड़ दें. Moreover, the introduction of anonymous reporting mechanism for both patients and healthcare staff can help in identifying issues related to the malpractice and misconduct without putting anyone at risk. इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो इसकी बात की जो है जरूरत है कि जो भी मैल प्रैक्टिस कर रहा है या जो मिसकंडक्ट इस तरह से हो रहा है उसको जाके एड्रेस किया जाए. उनको हम सबसे पहले जो है एक सिस्टम डेवलप करें जिसमें पेशेंट अगर देखता है कि कोई यहाँ बैठा हुआ है या इसकी मैल प्रैक्टिस हो रही है तो वो हेल्थ अथॉरिटीज को फौरन जो है इत्तला करें. इस तरह के हमारा सिस्टम 115 का सिस्टम बनाया हुआ है. गाड़ी चोरी हो जाती है या कोई और आपको प्रॉब्लम होती है तो आप फौरन जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं या पुलिस को कॉल करते हैं. इसी तरह का एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि अगर कोई मरीज हमारे शहरों में तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन कंट्री साइड में, गाँव में, देहातों में इस तरह के बहुत सारे लोग बैठे हैं जो
क्वेकरी कर रहे हैं और बैड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर उनका पता चलाया जा सके और जो वहाँ के लोग रहायशी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इदारों को फौरन इससे आगाही दें कि हमारे इस इलाके में एक साहब ऐसे भी नए आए हैं या पुराने हैं, पहले उनके जो वालिद साहब डॉक्टर थे वो बैठते थे, अब वालिद साहब का इंतकाल हो गया या हो गया, उनका ट्रांसफर हो गया, तो अब उनका बेटा जो नॉन क्वालिफाइड है वो प्रैक्टिस कर रहा है या उनका कजन प्रैक्टिस कर रहा है या उनका भाई प्रैक्टिस कर रहा है, तो इस तरह की जो चीजें वो फौरन हमें बतानी चाहिए. Yes, a country with the excellent doctors and poor ethics ever the considered ethical advancement or the ethical strength part of the real progress. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्री में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े बड़े काबिल डॉक्टर भी मौजूद हैं, ठीक है, और लेकिन हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती. वो डॉक्टर हैं मेरे अपने हम प्रोफेशन में, वो भी जो है वो उनकी पोर एथिक्स हैं और वो भी बैड प्रैक्टिस पे कभी कभार जो है वो राग़िब हो जाते हैं. तो ये एक कंटिन्यूस अमल है जिसको हमें करना होगा, ठीक है. Ethical strength is absolutely essential to true medical advancement. A country may have highly skilled doctors, but it may operate in any environment lacking the ethical standards. एक कोई भी कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट अगर आप किसी को देते हैं, लेकिन वहां पे अगर लोग जो है उनके एथिक्स अच्छे नहीं, तो डेफिनेटली वो पूरा माहौल खराब हो जाता है. इसी तरह से हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर वो मैल प्रैक्टिस शुरू कर दें, लेट से अगर किसी भी गायनेकोलॉजी में बात करता हूँ, एक फीमेल आती है, अगर वो नॉर्मल लेबर उसका डिलीवर हो सकता है तो जबरदस्ती वो उसको जो है वो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं. इसी तरह से अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको एक एंटीबायोटिक की जरूरत है तो उसको 2-3 एंटीबायोटिक लिख देते हैं, एक मल्टीवाइटामिन की जरूरत है तो 4 मल्टीवाइटामिन लिख देते हैं. तो ये सब मैल प्रैक्टिस हैं जिसको हमें रोकना चाहिए. इसमें डॉक्टर्स की स्किल्स तो अपनी जगह मौजूद है, वो तो हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जो एथिक्स है उसको हमें थोड़ा सा एड्रेस करना होगा कि वो इस तरह की ना प्रैक्टिस ना करें. ठीक है, अगर किसी को जो है आईवी इन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है लेकिन आप जबरदस्ती उसको जो है वो ड्रिप लगा रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो ये मैल प्रैक्टिस के शामिल हो जाता है, उसके जुमरे में आ जाता है. तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक स्किल डॉक्टर्स को थोड़ा सा हमें ये बताना पड़ेगा कि आपके जो है वो एथिक्स क्या है और मेडिकल एथिक्स के मुताबिक आप काम करें. A real progress in medicine is not solely about the technical powers. It encompasses a commitment to patient welfare, ethical treatment, and adequate and access to the care. Therefore, both the competencies and ethics must go hand to hand for a healthcare system to be genuinely advanced and trustworthy. इससे मैंने आपके पहले गुजारिश की कि ये दोनों चीजें साथ साथ मिलकर चल सकती है कि आपके पास स्किल तो है लेकिन अगर आपके पास जो है वो एथिक्स नहीं है तो आप वो सारी काम करेंगे जो नॉन एथिकल होते हैं. ठीक है, चाहे वो ट्रीटमेंट के हवाले से हो, चाहे वो पेशेंट की एक्सेस केयर के हवाले से हो, चाहे वो उसकी वेलफेयर के हवाले से हो, हर जगह आप जो है वो नॉन एथिक्स काम करना शुरू कर देते हैं तो पेशेंट जो है इसमें सफर करता है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे वो क्वेकरी है, चाहे वो मैल प्रैक्टिस है, कि हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए. अगर एक स्किल डॉक्टर बैठा हुआ है उसको भी करना चाहिए, और अगर एक नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर जो मुख्तलिफ जगहों में बैठे हुए हैं उनको तो डेफिनेटली हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उनको कर्व करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए. मेरे ख्याल में नेक्स्ट प्लीज. तो मेरी प्रेजेंटेशन तकरीबन मुकम्मल हो गई है. इसमें अगर आप किसी और को लाना चाहें तो ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. Thank you so much, Dr. Aftab, for such an insightful presentation. We deeply appreciate your time and your clarity on the subject.